Good evening, students. Welcome to yet another lecture of Physics Chapter 3 Current Electricity, and we will today discuss about Ohm's law. Ohm's law is a very important law, and there are many derivations which come through Ohm's law, and we'll also see there are some conductors which do not follow Ohm's law. As we go ahead in our discussions, we'll see what actually is Ohm's law and the deduction of resistance with respect to Ohm's law. So first of all, what is Ohm's law? Ohm's law states that if we keep all the physical conditions constant for a conductor, if we keep all the physical conditions constant, physical conditions क्या हो सकते हैं? It can be temperature, pressure, stress strain relationship. ये सब चीज़ों को अगर हम constant रखते हैं, so then the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. Again, I will state it. By keeping all the physical conditions constant, Ohm's law states that the current flowing through a conductor is proportional to the potential difference across the ends of the conductor. So I'll state it again what we have written. Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor, provided physical conditions of the conductor such as temperature, mechanical strain, etc. are kept constant. So Ohm's law states that I is proportional to V, or vice versa, V is proportional to I. What is I here? I is current, V is the potential difference. Okay, so from here what we can say, they are proportional, तो एक constant of proportionality इसमें ऐड कर देते है ना. So मैं इसमें V is equal to R I. What is R? R is a constant of proportionality which is called resistance. We'll discuss about that further. But here what we can see, this R is the constant of proportionality, resistance. Now here resistance is formula से ऐसा ना लगे कि R is proportional, R depends on V or R is proportional to V या R is proportional to 1 upon I, ऐसा wrong है. This is wrong. जैसा कि कैपेसिटेंस के कंडीशन में हमने पढ़ा था, है ना, C is equal to Q upon V, ऐसा लिख देने से कैपेसिटेंस उसमें चार्ज में या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता. वैसे ही रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर. इट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एंड डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. उसको हम आगे देखेंगे. सो हियर आर है ना, where R is a constant known as resistance of the conductor. It depends on the length, shape and nature of the material of the conductor. Now suppose I plot a graph. Resistance को मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए क्या करता हूँ, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. ये दिस एक्स एक्सिस में हमने करंट रखा है और वाई एक्सिस में वोल्टेज को रखा है. सो यहाँ से अगर हम इस रिलेशन को हम देखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर या आर आई, है ना. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो इफ वी प्लॉट V अक्रॉस I, वी कैन गेट समथिंग लाइक दिस और दिस. द स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको मिलेगा एंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज रेजिस्टेंस. क्या है ये? द स्लोप ऑफ द, अगर वी आई ग्राफ में प्लॉट करता हूँ, वी आई ग्राफ में एक लाइन हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा. अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इसका जो स्लोप है ना,
इसका जो स्लोप है ये रेजिस्टेंस है। तो इस ग्राफ को देख के मैं क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस केस में किसका स्लोप ज़्यादा है ना, इस केस में ये कंडक्टर ए जो है उसका स्लोप ज़्यादा है कंडक्टर बी से। सो इसका अगर ये रेजिस्टेंस आर ए है और इसका रेजिस्टेंस आर बी है तो आर ए इज़ ग्रेटर देन आर बी। ओके, so RA is greater than RB. If we plot VI graph for two conductors A and B, then the slope of the graph is the resistance. So higher the slope, higher is the resistance, and lower the slope, lower is the resistance. एक चीज़ और मैं डिस्कस नोट्स में तो नहीं किया हूँ, लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें, अगर यहाँ V की जगह मैं I प्लॉट कर रहा हूँ और यहाँ पे I की जगह V, तो यहाँ इस केस में अगेन द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल शो द रेजिस्टेंस ओनली, लेकिन ये 1/r होगा। ओके, 1/r होगा, इसको हम कंडक्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, है ना। तो यहाँ पे कंडक्टेंस को प्लॉट कर रहे हैं, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा या रेजिस्टेंस कम। तो यहाँ पे इस केस में आर ए विल बी लेस देन आर बी। ओके, यू हैव टू सी कि प्लॉट कैसे हो रहा है ग्राफ। ओके, आई और वी है या वी और आई है, इस केस में ये चीज़ डिपेंड करता है। ओके, सो इट शोज द हायर इज द स्लोप, द हायर इज द रेजिस्टेंस। सो ओके, नाउ विल गो टू हाउ दिस V इज प्रोपोर्शनल टू I और I इज प्रोपोर्शनल टू V। एक तरीके से हम एक डिडक्शन करते हैं ओम्स लॉ का। We know that the current flows through conductor because of the drift velocity of the free charge carriers. Here free charge carriers in conductor is free electrons. So we had deduced some formula of drift velocity. If Vd is the drift velocity, so what is the formula of drift velocity? Is the charge small e multiplied by the electric field upon mass of the electron. Okay, I'll write mass here, and the relaxation time, average relaxation time. This is drift velocity. We had deduced this relation. Okay, now we also know that E is equal to potential. This electric field is equal to potential difference divided by the length of the conductor. So we know V is equal to E is equal to V upon L. This gives the potential difference V is equal to electric field into the length. Okay, so here I can put this value of I can replace this electric field by V upon L. So I will write here the new drift velocity is EV upon ML and tau. Okay, इसकी तो ज़रूरत नहीं थी खैर। Okay, so now drift velocity is charge on electron into potential difference upon mass of electron divided by mass of electron divided by length of the conductor and the average relaxation time. Now from the same thing, when we had discussed about the relationship between the current and drift velocity, we had, this is one, we had another relation, I is equal to ANEVD. I is equal to ANE with drift velocity, where A is the area of cross section. What is A? A is the area of cross section, N is the number of free electrons, again E is the charge on electron, and Vd is drift velocity. So I can write here I is equal to ANE. In place of drift velocity, what I can write, multiplied by E potential difference
m, l and tau. So this is current. Current is equal to area of cross section into the number of free electrons into charge on electron multiplied by charge on electron, potential difference divided by mass of electron divided by length of the conductor, and tau. What I can do right now here is I is equal to a n e square tau upon m, and I can write here v upon l. Okay, so now what I can do here, इतना याद रखें, v को मैं वहीं रखता हूँ, i को इधर ले जाता हूँ, बाकी को इस साइड ले आता हूँ. तो क्या हुआ, v अपॉन i इज इक्वल टू, ये ऊपर उधर चला गया तो m l अपॉन a n e स्क्वायर टाउ. ओके, v अपॉन i इज इक्वल टू m mass of electron into length of conductor divided by area of cross section of the conductor divided by number of free electrons of the conductor divided by charge square of the charge of the conductor divided by the average relaxation time. What this gives, v upon I, this is a constant for a given temperature. This is a constant, and here what we can do is, this is the formula for deducing the resistance of that conductor, of that specific conductor, that is ml upon a n e square tau. So what we can write, v upon I here is r. Okay, so r is the constant of proportionality for a conductor, and for a given value of n, l, a, for a given temperature, this will remain constant. So this is what is the deduction of Ohm's law. Now let us consider something. We will focus on this resistance. What is this resistance? So the electrical resistance of a conductor is the obstruction posed by the conductor to the flow of electric current through it, है ना. व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का मतलब होता है बाधा. रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बाधा होता है. तो क्या किस पे बाधा डालेगी ये कंडक्टर? कंडक्टर उस करंट को फ्लो होने में बाधा डालेगी. तो दैट इज व्हाई, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. तो हमने जैसे बोला v इज इक्वल टू आई आर, तो r इज इक्वल टू v अपॉन i. r इज इक्वल टू v अपॉन i. सपोज हमने उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है 1 वोल्ट का, और उसके कारण में जो करंट फ्लो होना हो वो सीमित हो गया है 1 एम्पियर पे. तो ये जो रेजिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे, रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम. SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, है ना. उसको लिखते कैसे हैं? या तो कैपिटल ओमेगा से लिखते हैं या फिर ओम लिखते हैं. तो SI यूनिट इज ओम. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 ohm. So a resistance is said to be 1 ohm. Resistance of a conductor is said to be 1 ohm when we apply a potential difference of 1 volt across the ends of the conductors, and that allows 1 ampere of current to flow through it, then the resistance will be said to be 1 ohm. Okay, so SI unit is ohm. It is denoted by capital omega. 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere, है ना. तो इसको वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करते हैं ओम. ओके, सो अच्छा, डायमेंशन क्या होता है भाई? इसका डायमेंशन भी लिख देते हैं. डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस
एम एल 2t माइनस 3a माइनस 2, है ना, ये याद रखिएगा आप, एम एल स्क्वायर t टू द पावर माइनस 3 a टू द पावर माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन। अब इससे इम्पोर्टेंट है इसका सिंबल क्या है भाई, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है। सो फिक्स्ड रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं दिस इज द symbol of fixed resistance, this resistance is fixed। we also have variable resistance, उसको हम कैसे शो करते हैं, now this is variable resistance। और ऐसे सब्सटेंस जो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पोज करते हैं, जब हम उसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करते हैं तो इन चीज़ों को बोलते हैं रजिस्टर, है ना। उस डिवाइस को क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिक फ्लो को आप रेजिस्ट करते हैं उनको क्या बोलेंगे, रजिस्टर। सो दिस ऑल अबाउट रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर। नाउ सिंस वी हैव डिस्कस्ड दैट the resistance of a conductor depends upon some physical factors and the material of the conductor, let us discuss on those things in which, on those factors in which the resistance depends. Okay, so we'll discuss about the factors affecting the resistance of a conductor. The first factor is length of the conductor. Okay, so length of the conductor, for that उसको समझने के लिए let us assume, let us imagine a slab, conducting slab। okay, so there is a conducting slab and its length is L, the length of the conducting slab is L and its area of cross section, इसका area of cross section क्या है, A है। so length is L, area of cross section A, and suppose there is a current flowing through it, इसमें current है I, तो इधर से करंट इधर डाला, फ्लो किया, तो इधर से क्या करंट निकला, I, एंड इसके एंड्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस है V। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हमने, V अप्लाई किया है, उसके कारण पे करंट फ्लो हो रहा है I। ओके, सपोज ऐसा एक और एक आइडेंटिकल स्लैब है, आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्लैब है, तो जिसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, और इसको मैं एंड टू एंड यहाँ पे जोड़ देता हूँ। सपोज इसको क्या करता हूँ, इसको एंड टू एंड यहाँ पे जोड़ देते हैं यहाँ पे। अब मैंने इसको एंड टू एंड जोड़ दिया, जब एंड टू एंड जोड़ दिया तो इसकी जो टोटल लेंथ हो गई इस कॉम्बिनेशन की हो गई 12। ओके, है ना। और करंट इन अ सीरीज, या जिस तरीके एक तरीके से सीरीज का कॉम्बिनेशन हो गया, करंट विल रिमेन सेम। इट आई अंदर गया तो आई ही बाहर आएगा यहाँ पे, लेकिन जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल पहले कंडक्टिंग स्लैब का पोटेंशियल V है, दूसरे पोटेंशियल कंडक्टिंग स्लैब का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V ही है। सो यहाँ पे V और ये V, ये दो V हो गए। So let V be the potential difference applied across either slab and I be the current। so जब इसको एक दूसरे के बगल में रख देते हैं तो लेंथ हो जाता है इसका 12, है ना। करंट फ्लो हो रहा है I, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V प्लस V इज इक्वल टू 2V है। पहले वाले का अगर इसका रिलेशन मैं निकालूँ इसका, तो पहले वाले का था R वॉज V अपॉन I। ओके, क्या था उसका, R रेजिस्टेंस वॉज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन I। यहाँ पे R ऑफ द कॉम्बिनेशन, R ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे 2V, करंट क्या फ्लो हो रहा है इससे I। ओके, नाउ V अपॉन I इज R, सो हियर R ऑफ कॉम्बिनेशन is 2 times the resistance of a single slab।
अब इससे हमको क्या समझ में आया, द कॉम्बिनेशन जो अगर इसको लेंथ वाइज मैंने इसमें अगर जोड़ दिया है, यानी लेंथ बढ़ गया इसका, व्हेन आई हैव इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, व्हाट हैपेंड वाज the resistance also has increased, it has doubled, and I have doubled the length of the conductor, the resistance also has doubled. So what I can deduce from this is that resistance is directly proportional to the length of the conductor. What I can say here is resistance R is proportional to the length of the conductor. As I increase the length of the conductor, its resistance will also increase. फिजिकली अगर हम सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने बोला था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है तब कंडक्टर में करंट फ्लो होता है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो जब वो मूव करता है, एंड टू एंड मूव करता है, तो करंट फ्लो होता है। अगर वो जो मूवमेंट का जो डिस्टेंस है वो मैं बढ़ा दिया है ना, पहले यहाँ पे सपोज इतने ही डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इसको इतना ही ट्रैवल करना था, तो ये रेजिस्टेंस इसमें जो भी था, अगर मैं इसका लेंथ बढ़ा देता हूँ तो रेजिस्टेंस अब कितना मूव करना पड़ेगा उसको, इस लेंथ में मूव करने का। तो जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाता हूँ कंडक्टर का, तो इलेक्ट्रॉन को उसको कम्प्लीटली मूव करने में, उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय लगेगा यानी उसका रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज़ हो गया है। हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था, रिलैक्सेशन टाइम से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रिलैक्सेशन टाइम जिसका ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है। तो रिलैक्सेशन टाइम जिसका यहाँ पे कम हो रहा है, यानी बहुत बार स्ट्राइक हो रहा है, ये मल्टीपल स्ट्राइक्स हो रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। लेंथ बढ़ाने से, कंडक्टर का लेंथ बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। दिस इज़ द फर्स्ट factor which we have discussed. Now let us move to the second factor. Now the second factor which we discuss, which affects the resistance of the conductor, is area of cross section. Okay, area of cross section. Suppose we'll imagine the same conductor, conducting slab which has length L, and area of cross section here is A. इसका area of cross section क्या है? A है. Okay, so a current I is flowing through it and the potential difference across the ends of the conductor is V. Now suppose इसको हम क्या करते हैं कि what we try to do is we'll split it lengthwise into two identical half slabs. क्या करेंगे, इसको काट देंगे lengthwise. कैसे काटेंगे? lengthwise इसको एकदम हाफ कर देते हैं, इसको काट दिया आधा, लेंथ वाइज इसको काट दिया। ओके, इसको हमने लेंथ वाइज काट दिया, तो ये हाफ स्लैब का एरिया हो गया A/2, इसकी एरिया हो गई A/2। ओके, बट लेंथ विल रिमेन L, length will remain the same length. So what happens is, in this condition, because the current is flowing, I is the current flowing through this conductor, but we have divided it lengthwise, so the current flowing through each half of the conductor will be I/2. The total current flowing is I, but हर एक हाफ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा I/2. Okay, but the potential will remain the same. Here the potential length same है, तो potential सेम रहेगा। तो अगर मैं इस हाफ का रेजिस्टेंस निकालूँ, सपोज इस हाफ का रेजिस्टेंस निकालता हूँ, जिसको मैं R' बोलता हूँ, तो सपोज पोटेंशियल क्या है इसमें, पोटेंशियल तो V ही है, लेकिन करंट क्या हो गया, I की जगह वो हो गया I/2. ओके, सो R' will be 2V/I. V/I is R original, so R' here is 2 times R. See here now, मैंने क्या किया, मैंने इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम किया। क्या किया मैंने, उसको हाफ कर दिया, एरिया को क्रॉस सेक्शन को हाफ किया, तो उस हाफ वाले जो एरिया जो स्लैब है उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया, उसका रेजिस्टेंस डबल हो गया। ओके, सो हियर व्हाट आई कैन से इज दिस
रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया कम किया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, एरिया बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, सो हियर आई कैन से सेफली R is proportional to 1 upon A. Okay, R is proportional to 1 upon A. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो नाउ वी हैव टू रिलेशंस, वन विथ लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड सेकेंड विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, सपोज इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, है ना। ऐसे यहाँ पे हमने लिखा R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, है ना। हमें ये रिलेशन मिला, R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, R इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। नाउ व्हाट आई कैन डू हियर इज, मैं इसमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाल सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाला, इसको रो बोलते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई A। सो व्हाट इज रो? रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रो को क्या बोलते हैं? रो इज अ रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एंड द रो depends upon the material of the conductor, it does not depends upon the physical characteristic of the resistance, है ना, जिस कि या कंडक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, it depends upon the material of the conductor. So rho is the constant of proportionality which is called resistivity and it depends upon the material of the conductor and not on the dimensions of the conductor. Okay, so what is the unit of resistivity? Its unit of resistivity rho. Rho का यूनिट क्या है? It is ओम मीटर। कैसे निकला? जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं R का यूनिट क्या है? ओम है। रेजिस्टिविटी का पता नहीं, एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर, सॉरी लेंथ का क्या है? मीटर है, और एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर। ओके, तो रो का यूनिट निकालना है, तो रो इज इक्वल टू ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर कैंसल, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, है ना। यूनिट क्या है इसका? ओम मीटर। ओके, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जब रेजिस्टेंस निकाला था R, है ना, थोड़ी देर पहले हमने R का फॉर्मूला निकाला था, R इज इक्वल टू ML अपॉन AN, सॉरी हाँ, NE स्क्वायर टाउ था, यस, NE स्क्वायर A टाउ। ओके, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A करता हूँ, है ना, यहाँ से आपको कुछ देखिए कुछ मिलता जुलता है क्या, है ना। R इज इक्वल टू रो L बाई A, R इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L बाई A। यहाँ पे रो मुझे मिल रहा है M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ओके, सो द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड द रिलैक्सेशन टाइम। कंडक्टर पे ये N और ये टाउ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये पता चलेगा। और रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है, यानी दो कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी के लिए। तो देर आर आपके बुक में काफ़ी सारे मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी दी हुई है। इन पेज नंबर 102 रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री C, 0 डिग्री C पे रेजिस्टिविटी दी हुई है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन की। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स विल बी लो टू द ट्यून ऑफ टू द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ ओम मीटर,
लेकिन सेमीकंडक्टर की मीडियम रहेगी और इंसुलेटर की बहुत ज़्यादा रहेगी रेजिस्टिविटी। जैसे प्योर वाटर की है 2.5 × 10⁵ ओम मीटर, प्योर वाटर का ग्लास का 10⁻10 से 10⁻14 है। हार्ड रबर का है 10⁻13 से 10⁻16 ओम मीटर, और फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का है टू द ऑर्डर ऑफ 10⁻16 ओम मीटर, यानी हाई रेजिस्टिविटी। अब कंडक्टर्स की बात करें तो सिल्वर का है 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर, है ना। कॉपर जो हम लोग अपने घरों में इसके तार लगाते हैं, इसका 1.7 × 10⁻8 ओम मीटर। टंगस्टन 5.6 × 10⁻8 ohm meter. Okay, now we'll study, also have some semiconductors. Silicon 2300 ohm meter, germanium 0.46 ohm meter, carbon or graphite is 3.5 × 10⁻5 ohm meter. So these are the resistivity of some of the materials. Don't worry, आपके सवाल में जब सवाल पूछा जाएगा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई होगी, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट Ohm's law, resistance and resistivity. In the next class we will discuss about current density, conductivity, conductance, and deviation from Ohm's law, the materials which deviate from Ohm's law, power, energy, ये सब पे हम बात करेंगे। Okay, thank you.